لیکن آپ اس رکاوٹ کو عبور کر جائیں گے. وہ آپ کا حق تھا، آپ کو ملنا تھا، نہیں مل رہا تھا، یا نئے کاروبار یا نئے کام میں کوئی چیز آئی ہو تو اس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ہیلو دوستو، میں ہوں لیاقت جوگی، کراچی بیسڈ ٹیرو کارڈ ریڈر اینڈ پامسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیرو بائی جوگی. سب سے پہلے بہت بہت معذرت کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تھوڑی سی چھٹیاں کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چھٹی نہ کروں، اور چھٹی نہ کرنے کی یہ بہت زیادہ ٹائم پہ آنے کی، ٹائم پہ ریکارڈنگ کرنے کی، مجھے 2 دن چاہیے ہوتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے. وہ 2 دن نکالنا بھی میرے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، مگر میں نکالتا ہوں. لیکن پچھلے دنوں مصروفیت کچھ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں وہ 2 دن بھی نہیں نکال سکا. تو بہرحال معذرت، اور اب سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی چھٹی نہ ہو. اور جن لوگوں نے مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھی اور میسیجز کیے، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے مجھے نظر انداز نہیں کیا، مجھے بھولا نہیں، بلکہ مجھے یاد کرایا کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں. اور اس وقت آپ میرے اسٹوڈیو میں بھی، میری ٹیبل پر بھی اور میرے آگے پیچھے بھی بہت زیادہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، چینج محسوس کر رہے ہیں. جی جناب، ہمارا اسٹوڈیو بھی بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے، کلر اسکیم اس کی بدل چکی ہے. اب یہ چینج ہوتا کیوں ہے، یہ چینج ضروری کیوں ہے، اور اس کی آپ کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کی طرف بھی آتے ہیں. ویسے تو مارکیٹنگ کی ٹرم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے PLC، پروڈکٹ لائف سائیکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی شکل، اس کا لوگو، اس کی چیزیں، کلر اسکیم بدلتے رہتے ہیں، بلکہ پروڈکٹ کے اندر بھی آپ کوئی نہ کوئی چیز بڑھاتے یا کم کرتے رہتے ہیں. یہ ریسرچ کا حصہ ہوتا ہے، اور اس ریسرچ کے تحت یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو PLC کہتے ہیں، پروڈکٹ لائف سائیکل. اس کو نہ بدلیں تو زندگی وہیں پہ ختم ہو جائے. اور جن پروڈکٹس پہ چینج نہیں آیا، وہ پروڈکٹ واقعی ختم ہو گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکی. ایسی بہت ساری کمپنیاں بھی تھیں جو کہ بہت مشہور تھیں، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں تو وہ ختم ہو گئی. اب میں آپ کو عام زندگی میں تبدیلی کے بارے میں تھوڑا سا اس کو ٹوٹکا سمجھیں، مشورہ سمجھیں. اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے رہا کریں. جو لوگ مجھ سے بہت قریب ہیں یا بہت پرانے عرصے سے مجھ سے وابستہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تبدیلی میری شخصیت کا حصہ ہے. میں کپڑوں میں، لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنی داڑھی میں، یا کلین شیو تھا تو اس وقت، یا اس سے پہلے صرف مونچھیں تھی تو اس وقت، اکثر تبدیلی کرتا رہتا ہوں ہر چیز میں. اسی طریقے سے میں اپنی رہائش میں بھی، اپنے کمرے میں بھی، اپنے ڈرائنگ روم کو بھی، اپنے آفس کو بھی تبدیل کرتا رہتا ہوں، چینجز لاتا رہتا ہوں. اور پھر اگر آپ نے میرے بہت پرانے ٹوٹکے دیکھے ہوں تو ایسی خواتین جو کہ کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں آ رہا یا بات چیت نہیں ہو رہی، تو ان کو بھی تبدیلی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، اور وہ بیماریاں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی، پکڑی نہیں جاتی، یا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بیماری کیا ہے، تو ان کو بھی میں تبدیلی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں. بیماروں کے لیے تو میں خاص طور پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنا بیڈ روم چینج کریں. اگر بیڈ روم چینج نہیں کرتے تو اپنے بیڈ کی سائڈ چینج کریں کہ اس طرف آپ کا بیڈ ہے، آپ نے اس طرف کر دیا. اگر ویسے بھی نہیں کر سکتے تو اپنا سرہانہ چینج کریں، تکیہ اس طرف ہے تو اس طرف کرتے ہیں، اس طرف ہے تو اس طرف کرتے ہیں. اس قسم کے ٹوٹکے میں اس وقت بھی دیتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، تعویذ ہے، خواب آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو ان کو بھی تبدیلی کا مشورہ دیتا ہوں. کمرہ، بیڈ کی سائڈ یا آپ کی سمت سونے کی چینج کرتے رہیں، اور نو ڈاؤٹ سے اس سے آپ کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. خاص طور پہ ایسی لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوتی، تو ان کو میں اپنی شخصیت میں تبدیلی کا مشورہ دیتا ہوں کہ جو روایتی لباس آپ پہنتی ہو عام طور پہ، جس سے آپ کی شناخت ہے، اس کو ختم کرو اور اب نئی شناخت بناؤ.
बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स जो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहनें, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो, आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके लिए बहुत दुआ गो हैं। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आपकी रीडिंग कैसे रहेगी, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, इस हफ़्ते का कार्ड निकाला आपके लिए मैंने और इस कार्ड में अगर कोई रुकावट हुई तो वो निकाला। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, उस ऑफ़र में आपने जो हासिल करना था, जो आपकी मेहनत थी, जो आपके जायदाद थी या चीज़ें थी, उसमें से आधा आपको मिलने वाला है। वो बोनस भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ होगी, मगर जो भी होगी वो आपका हक था, आपको मिलना था, नहीं मिल रहा था, वो आपको आधा मिलने वाला है। आधे की ऑफ़र आपके पास मौजूद है। आधा हो सकता है फिर कभी मिल जाए, लेकिन ये आने वाला है। और ये जो लोग हैं, रुकावट हैं, ये जो रोक हो सकता है कि वो जो चीज़ आ रही है, इसमें आप अकेले हिस्सेदार ना हों और लोग भी हिस्सेदार हों और वो पंगा करें, वो कोई फड्डा करें, वो कोई चीज़ गड़बड़ करें। बहरहाल वो चीज़ भी गड़बड़ भी मुझे यहाँ होते हुए नज़र आ रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ आपका काम ख़राब कर सकती है। ये पेज ऑफ कप्स है, ये पेज ऑफ कप्स आपके लिए आया, इसकी बेस आई है और उस पे आपने बहुत मेहनत की है। इस काम के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, बहुत सोच के रखा है, बहुत प्यार है आपको इन चीज़ों से, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है इस चीज़ों से और उसको हासिल करने के लिए आपने एक मेहनत की है, तो वो मेहनत आपके पास आ रही है इंशाअल्लाह। ये वाला देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये असल में कह रहा है पास का कार्ड है। ये कह रहा है फ्रूट ऑफ योर लेबर। अभी मैंने कहा कि आपकी कोई मेहनत थी, वो उसका सिला भी आपके पास आने वाला है। वो चीज़ आपके पास 50% आपके पास आ रही है, 50% हो सकता है कि थोड़ा-सा आगे चलकर आपके पास आए। और ये फ्रूट ऑफ लेबर आपका पुरानी कहानी है, पुरानी चीज़ें हैं, जिस पे मैंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास ये चीज़ दोबारा आ रही है। ये देखिएगा, ये प्रेज़ेंट का कार्ड है, ये फूल का कार्ड है और ये प्रेज़ेंट और फूल का कार्ड आपको बता रहा है कि आपने कोई नया रास्ता, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दी है। इन चीज़ों के आने के बाद, इस अचीवमेंट के बाद आप अब अगर अपना कोई कारोबार, कोई काम या बिज़नेस या कोई और भी अपनी सोच पूरी करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप, तो उसके लिए आप निकल खड़े हुए हैं। हालाँकि आपको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपका अज़्म जो है, आपकी जो पावर है, ताकत है, उसमें जान है कि आप वो कुछ न कुछ नया करने का रखते हैं और वो चीज़ हासिल कर लेंगे। ये है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड या 9 ऑफ पेंटिकल है या 9 ऑफ वांड्स है। 9 ऑफ वांड्स असल में बता रहा है कि आपके पास आप मंजिल पे पहुंचने के लिए कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रुकावट मौजूद है, लेकिन आप उस रुकावट को अबूर कर जाएंगे और वो आप ओवरकम कर लेंगे प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये वाली भी हो सकती है जो मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है, या कोई नई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या नए कारोबार या नए काम में कोई चीज़ आई हो तो उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप उसको अबूर कर लेंगे और उसको ओवरकम कर लेंगे उस प्रॉब्लम को। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आपकी फीलिंग क्या है और आप किस तरीके से बेहतर अपने आप को कर सकते हैं या महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिएगा हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, दुआओं का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा मान है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाती हैं या अच्छी कर जाते हो। ये वाला जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और वो समझते हैं कि आपकी किस्मत का चक्कर घूम चुका है, आप बेहतर से बेहतर करने की
पोजीशन में मौजूद हैं। ये फियर है खामखा का, दिल टूटने का, काम ख़राब होने का फियर है, इसको भूल जाएं, ये ऐसी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कार्ड आपकी सोच के मुताबिक है कि आपके जहन में ये बात कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ये जो फंसी हुई बात है इसको निकाल दो ताकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और बेहतर हो जाए। आखिरी वाला कार्ड डेथ का कार्ड है और ये बुरा कार्ड नहीं होता, लोग डेथ के कार्ड को बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताई एक छोटी सी चीज़ कि कुछ ना कुछ नया करना, ये भी यही कहता है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना, नई चीज़ करना और नए काम करना, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पास बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। और ये कार्ड आपको रीजनरेट करता है, आपको एक साइकिल को पूरा करके नए साइकिल में को स्टार्ट करने में मदद फरमाता है। तो आपके पास इस वक्त डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि आपको बदलेगा, चेंज करेगा और नए मौके आपके पास आएंगे। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपके सवालों की तरफ। आपके 3 सवालों के जवाब। 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि नहीं, आपका काम नहीं हो सकता, आप बहुत ज़्यादा कोशिशें उसके लिए नहीं करें। इस काम ना होने की वजह भी यह है कि कोई ना कोई हो सकता है कि आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा हो और आपको तंग कर रहा हो और आपके साथ गलत बयानी कर रहा हो। सवाल नंबर 2 भी कह रहा है कि ये सवाल नंबर 2 कह रहा है कि आपका काम हो सकता है लेकिन स्पॉइल हो गए हैं, आप अपने आप को बेकार महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुदरत आपका काम कर देगी, बुनियादी तौर पे वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा जद्दोजहद से, थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलने से आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।